Yes, so today we are going to start the topic why we need a parliament. Okay. In earlier classes, you have discussed about the various levels of government. So tell me about the various levels of government. Yes. Uh, Akul, Pari, they have written in chat box about the various levels. Yes, and they are correct also. Okay. Side by side, raise your hand also. Okay. So the correct levels that you have told. So the correct levels are, first there is national level, there is central government, then there is state government, and then there is local government. Okay. So about local government, you have discussed in 6th class Panchayati Raj system, okay, about the municipal corporation, that you have discussed in 6th class. In 7th class, you have discussed about state level, who are MLAs, how the legislative assemblies are formed, okay. So all you have discussed about these. So today we are going to discuss about this central level. Okay, these two levels you have discussed in previous classes. Okay, in 6th class you have discussed about local. In 7th class you have discussed about state level. So today we are going to discuss about the central level. So at this central level, which is our representative body, ठीक है, इन सभी वेरियस लेवल्स पे क्या है, देयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हु रन द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. ठीक है, हमारी कंट्री है, गवर्नमेंट इज देयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव दे run the country on the behalf of people, they do for their work or for the welfare of people. Okay. Yes, president is also one of the part of central government only. Okay. So in central government there is parliament. In central government there is parliament in which representatives of people are there. So there are elections for these members of parliament. So these members of parliament are MPs. इलेक्शंस होते हैं एमपी के. सेम वे जैसे स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं एमएलए के लिए, है ना. यहाँ पे एमएलए के इलेक्शंस के बारे में आपने डिस्कस किया था कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फॉर्म्ड टू इलेक्ट दीज एमएलए. इन एमएलए को इलेक्ट करने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं. ठीक है, फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज एमएलए आर ऑल्सो इलेक्टेड. उसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसी तरह की बनाई जाती हैं जब एमपीज के इलेक्शन होते हैं. और ये सारे एमपीज थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है, जो एमपीज हैं, जैसे हाउ मेनी टोटल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने टोटल स्टेट्स हैं? यस, टोटल 28 स्टेट्स हैं बच्चों. ठीक है, अभी किसी दिन आपकी स्टेट सारे रिवाइज करवाने पड़ेंगे. देयर इज सम कंफ्यूजन आई थिंक, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग 29 एंड सम आर राइटिंग 28. ठीक है, जबकि 28 स्टेट्स हैं. ठीक है, सी द मैप वंस. 28 states are there and only 8 union territories. Yes, very good. ठीक है, तो अब सभी states में से different MPs जो हैं वो चुने जाते हैं. every state different MPs are elected. हर state में से MPs चुने जाते हैं and they are the members of this parliament. वो इस parliament के members बनते हैं. ठीक है, and all these total seats in our parliament. अब इस parliament के there are two houses of this parliament. ठीक है, one house it is Lok Sabha and second house it is Rajya Sabha. ठीक है, so there are two houses of parliament. parliament इन दो houses से बनती है. सभा हिंदी का वर्ड है, सभा मीन्स मीटिंग्स, जहाँ पे की मीटिंग्स होती हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की. ठीक है, और पार्लियामेंट यहाँ पर, अब अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट में ये दो चीजें हैं. पार्लियामेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एट सेंट्रल लेवल,
और उस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कैसे बन रही है? लोकसभा। ये जो एमपीज होंगे ये किसके मेंबर होंगे? लोकसभा के, ठीक है। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना यहाँ पे, तो वो चुन के भेजती हैं, ठीक है। हम सिर्फ अभी लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, राज्यसभा के बारे में नहीं। लोकसभा में जो हमारे एमपीज हैं जिनको हमने चुना है वो किसके मेंबर्स बनते हैं? लोकसभा के, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो है वो चुन के यहाँ पर भेजते हैं। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? लोकसभा में जो टोटल नंबर है मेंबर्स जितने की हमारे ऑल ओवर इंडिया के हैं, दे आर 545, ठीक है। टोटल जो मेंबर्स है यहाँ पे कितने हैं? 545, यस। और यहाँ राज्यसभा के इसके हैं 245, क्लियर। लोकसभा के मेंबर्स कितने हैं? 545 और राज्यसभा के कितने हैं? 245। अब इस 545 में से जो 543 मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं? इलेक्टेड, ठीक है। इलेक्टेड कैसे होंगे? थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। 543 इलेक्टेड होते हैं जिनमें से कि 2 अभी तक नॉमिनेट किए जा रहे थे, बट नाउ दिस प्रोविजन हैज बीन स्टॉप्ड। पहले अभी तक 2 नॉमिनेट किए जा रहे थे प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 पीपल ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन जो कि ब्रिटिशर्स थे और इंडिया में सेटल हो गए थे। जब ब्रिटिशर्स 1947 के बाद ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, वी गॉट इंडिपेंडेंस, लेकिन फिर भी कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिन्होंने यहीं पे दे हैव मैरिड देयर ओनली एंड दे हैव गॉट देयर चिल्ड्रन देयर, तो वो एंग्लो इंडियन बन गए, ठीक है। तो उनके लिए नॉमिनेशन थी, बट नाउ दिस नॉमिनेशन हैज बीन स्टॉप्ड इन 2020। 2020 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके ये नॉमिनेशन खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अभी नॉमिनेशन नहीं है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट चल रही है उसमें ये मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट लोकसभा है ना उसमें ये मेंबर्स है, लेकिन जो आगे नेक्स्ट बनेगी उसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 545 मेंबर्स हो गए लोकसभा के, 245 हो गए राज्यसभा के, ठीक है। अब ये लोकसभा क्या है? यस, सो दिस इज द हाउस ऑफ पीपल, मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें है। इसमें क्या है? नॉमिनेटेड। तो ये किसके हैं? स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उनको, और ये लोगों को एज ए होल सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये इतनी चीज क्लियर होगी कि पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इट इज द लोअर हाउस, इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं और इसको अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको लोअर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड ओनली फॉर 5 years, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये मेंबर्स सिर्फ 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन इसके मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं आफ्टर एवरी 2 years, 1/3 मेंबर्स आर रिटायर, ठीक है। तो 2 साल के बाद जो है उसके 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है, तो कंप्लीट ये 245 इकट्ठे कभी भी हम कहते हैं कि 245 इकट्ठे चेंज नहीं होते, ठीक है। ये स्लोली 2 years के बाद थोड़े से मेंबर चेंज, उनका इलेक्शन होता है, ठीक है, फिर वो इलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये एक बार 5 साल के बाद सारे के सारे 543 दोबारा इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। तो ये लोअर हाउस भी है और ये अपर हाउस है, ठीक है। ये हाउस ऑफ स्टेट्स है और दिस ये कौन सा है? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। अब इसी में हम और इसको थोड़ा और समझते हैं। अब यहाँ का जो चेयरमैन है वो होगा स्पीकर, ठीक है। यहाँ का चेयरमैन कौन होगा? स्पीकर, और स्पीकर के साथ एक चेयरमैन भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसका चेयरमैन होता है, क्लियर। यहाँ पे स्पीकर चेयरमैन है, स्पीकर एंड चेयरमैन उसको असिस्ट करने के लिए भी होता है, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। एंड आफ्टर दैट अब लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। अगर हम बात करें कि ये 2 हाउसेस हैं हमारे, ठीक है, इसमें
हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हैं, तो इसलिए इसके पास ज्यादा पावर है। वैसे ये लोअर हाउस है, ठीक है, कहने को ये लोअर हाउस है, लेकिन पावर्स इसके पास क्या है, ज्यादा है। दिस इज मोर पावरफुल। और मोर पावरफुल कैसे हैं, ठीक है, इसके पास पावर कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती है। अब वो पावर्स कैसे हैं, जैसे कि डिफरेंट जो बिल हैं, ठीक है, लॉज, इन दोनों का काम क्या है, लॉज बनाना, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लासेस में आप ज्यादा डिस्कस करोगे डिटेल में। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि दिस इज मोर पावरफुल, ठीक है, क्योंकि जो भी बजट वगैरह पेश किया जाता है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होती है, वो लोकसभा में ही लॉज बनाए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्टेड हमारे मेंबर्स होते हैं, इसमें जो नॉमिनेटेड हैं वो हैं ज्यादा, इसमें भी 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनको डिफरेंट कल्चर्स, आर्ट वगैरह में कुछ ना कुछ उनको मिले हुए हैं, दे हैव अचीव्ड सक्सेस इन वेरियस फील्ड, ठीक है। तो वो उसमें 12 नॉमिनेट होते हैं, इसमें 2, जो कि हमने बता दिया कि अभी प्रोविजन नेक्स्ट जो अभी इलेक्शंस होंगे उसमें नहीं होगी। तो these are 2 houses. This Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha, क्योंकि जो भी मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। जो ऑर्डिनरी होता है वो तो किसी में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरी अगर हमने कोई कानून बनाना है तो वो कोई भी इनिशिएट कर सकता है, लेकिन दोनों से पास होना जरूरी होता है। अभी रफली आप इतना समझ लो कि दिस इज मोर पावरफुल एंड दिस इज लेस पावरफुल, ठीक है। So this is our present structure of parliament. But before independence, what was there? जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, when our country was still under the British rule, ठीक है, because our chapter is why we need a parliament at that time, ठीक है। उस टाइम पे जब हमारा इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे ये क्यों हमारे मन में आया कि वाई पीपल शुड डिसाइड, कि लोगों को ही क्यों डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी क्या है, वी ऑल आर लिविंग इन सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी के लिए डिसीजन कौन लेगा, हम लेंगे। हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में जो भी डिसीजन लेना वो कौन लेगा, हम लेंगे, क्योंकि हम अपने, हमारा फायदा क्या है, किसमें है, वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो लोगों को डिसाइड करना है कि हमारा फायदा किस में है, लेकिन हम किसको चूज कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड करेंगे व्हाट इज आर इन आर फेवर। तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस द थिंग वाज नॉट सच, जैसे कि आज है। When we have not got independence, when our independence struggle was going on, so people of different classes, different caste, they participate together. सभी ने इकट्ठे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस various backgrounds, people from various backgrounds, they participated together. सिर्फ एक ही, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही कास्ट के लोग थे या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, बट द पीपल ऑफ वेरियस बैकग्राउंड्स दे पार्टिसिपेटेड इन दिस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। सबने पार्टिसिपेट किया इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, और उस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में उन सबका आइडिया क्या था, व्हाई दे हैव पार्टिसिपेटेड, टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। ब्रिटिशर से फ्रीडम क्यों लेनी थी उन्होंने, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर टेकिंग डिसीजंस फॉर आवर इंडिया। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमारे लिए डिसीजन ले रहे थे, बिकॉज दे वर रूलिंग ओवर देम। वो डिसीजन ले रहे थे, हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन हमने क्या कहा कि हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। इसीलिए हमने स्ट्रगल किया ना कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए डिसीजंस नहीं लेंगे, दे विल नॉट टेक डिसीजन फॉर अस, वी विल टेक डिसीजन फॉर आवरसेल्फ। हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, वी वांट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, ब्रिटिशर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि दे शुड लीव इंडिया एंड वी विल हैव आवर गवर्नमेंट, और हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी।
ठीक है। अब बिफोर इंडिपेंडेंस वेरियस बैकग्राउंड्स पीपल दे वर पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल एंड दे जॉइन द स्ट्रगल कलेक्टिवली एंड विच आइडियाज दे गॉट, उनके माइंड में आइडिया क्या था, फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, ये सारे आइडियाज उनके माइंड में थे कि हम सबको फ्रीडम होगी, हम सबके साथ इक्वालिटी होगी, ठीक है, और जिसमें कि जो डिसीजन मेकिंग है वो लोगों के पास होगी, ठीक है, एंड द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, कि जो भी हमारे लिए डिसीजन लिया जाएगा उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्लियर। बट इन ब्रिटिश रूल द सिचुएशन वाज नॉट लाइक दिस, जब ब्रिटिश का रूल था तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। although there were elections, ब्रिटिशर्स ने थोड़े टाइम के बाद इलेक्शंस स्टार्ट कर भी दिए थे, बट दैट वाज ओनली लिमिटेड टू सम एरिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम में इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे लेकिन वो सिर्फ कुछ एक एरियाज में लिमिटेड थे, वो पूरे इंडिया में इक्वली नहीं था। सो these people they think कि we should participate in decision making. Britishers they are outsiders, so they don't have right to take decision for us. Decision for us will be taken by our representatives only. So this is the first heading in your book कि why people decide, लोग क्यों decide करेंगे, है ना, लोग क्यों डिसाइड करेंगे, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस वी हैव स्ट्रगल्ड सो मच फॉर आर दीज आइडियल्स, इन आइडियल्स के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया है, और इन्हीं आइडियल्स के साथ वी हैव टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हमारे क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या सबके साथ इक्वालिटी नहीं थी, सबको प्रॉपर फ्रीडम नहीं थी, सबसे डिसीजन जब उनके लिए लिए जाते थे तो हमसे कंसल्ट नहीं किया जाता था, अगर बाद में कुछ इलेक्शन होते भी थे तो दैट वाज ओनली लिमिटेड टू सम एरियाज, ठीक है, वो इलेक्शन भी कुछ एरियाज तक ही लिमिटेड थे, बाद में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिए, लेकिन उन्होंने एक्ट पास किया गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1909, ठीक है, ये एक्ट भी पास किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ही 1909 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, बट दैट वाज ओनली अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो भी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, दैट वाज जस्ट लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो वो भी सिर्फ रिप्रेजेंट लिमिटेड थी। यस जैसे कि हमने अभी जब हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 किया उसमें भी हमने देखा कि सम इंडियंस वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स, कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडियंस भी लॉयल थे और कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिसर उनके अपने भी थे, ठीक है, सो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स दे वर आल्सो इलेक्टेड फ्रॉम इंडियंस ओनली, इंडियंस में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस टाइम पर डिसीजन लेते थे, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड थे, वो सभी एरियाज में से नहीं चुने जाते थे, दैट वाज ओनली लिमिटेड, तो वो फर्दर क्लासेस में आप डिस्कस करोगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि बिफोर इंडिपेंडेंस वी स्ट्रगल्ड फॉर आवर डिसीजन मेकिंग एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस वी मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट, और इंडिपेंडेंस जब हमें मिल गई तब हमने सबके लिए कंपल्सरी कर दिया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं हम गवर्नमेंट में, हाउ कैन वी पार्टिसिपेट, because we are not taking decision for our country, हम decision नहीं ले रहे लेकिन हम participate कैसे कर रहे हैं, yes are through voting, एक तो हम voting डाल रहे हैं और बहुत सारे ways हैं participate करने के, yes by yes अकुल by election through vote we are electing our representatives, ठीक है, एक तो हम votes डाल के अपने जो representatives हैं इनको चुन रहे हैं, ठीक है, this is one way, ठीक है, ये क्या है हमारे different वेज है पार्टिसिपेशन की। अब जब 1947 के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो 1947 के बाद हमने सबकी पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन रखी, ठीक है, इसकी प्रोविजन रखी कि एवरी पर्सन who is an adult is able to participate in the working of government through elections. The main way is through elections, but other ways are also we can, if any decision of government is against us, then even then we can participate by rallies, demonstrations, by expressing our views, by organizing in various institutions, so there are various ways of participation,
but the most important is universal adult franchise. Clear? Till this all points are clear, that before independence we were not having this right. This is universal, means to everyone, but before freedom it was limited. Although government has passed, British government has passed this act in 1909, but that was just limited to some representatives only. But when we got independence, then we decide to take our decision ourselves. So why people should decide? Because we want our decision to be taken by ourselves, कि हमारी सोसाइटी है तो हमारे लिए क्या डिसीजन लेना है वो हम लेंगे, और हम कैसे लेंगे? थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लेंगे, बिकॉज वी विल नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, हम सभी इकट्ठे तो नहीं गवर्नमेंट चला सकते ना, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. क्लियर? ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर नाउ. सो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. अब इससे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हम क्या चुनते हैं? सो पीपल कैसे डिसाइड करते हैं? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसाइड करते हैं. So how representatives are elected? Representatives are elected through universal adult franchise, and at central level, if we are talking about, these are members of parliament. ठीक है? Members of parliament that we elect, and at state level, legislative assemblies, at local levels, so various levels, we elect our representatives. So now, come to our this topic, why we need this parliament. ठीक है? So why we need this parliament, or what is the importance of parliament, or what is the role of parliament? All the questions are having only one answer. ठीक है? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, या पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, या पार्लियामेंट का रोल क्या है, और या पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं. ठीक है? पार्लियामेंट क्या है? ये दो हाउसेस. ये दो हाउसेस क्या है? पार्लियामेंट. तो हमें इनकी जरूरत क्यों है? व्हाई वी नीड, व्हाट वर्क दे आर डूइंग, वो क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या रोल है. ठीक है? ये सारे पॉइंट्स किस में आएंगे जो हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं. सारे पॉइंट्स, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर वही है. ठीक है? सो नेक्स्ट इज व्हाट इज रोल ऑफ पार्लियामेंट और व्हाई वी नीड पार्लियामेंट. ठीक है? आपकी बुक में रोल ऑफ पार्लियामेंट का हेडिंग है, रोल ऑफ पार्लियामेंट. और रोल ऑफ पार्लियामेंट का मीनिंग कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, पार्लियामेंट क्या काम कर रही है. तो फर्स्ट पॉइंट जो है रोल ऑफ पार्लियामेंट में, दैट इज टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. अब पार्लियामेंट, हमें पता चल गई कि पार्लियामेंट क्या है. इन पार्लियामेंट देयर आर मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स. ठीक है? जो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किए गए हैं, वो मेंबर्स है जो 5 इयर्स के लिए हैं. ठीक है? राज्यसभा में मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट होके आ रहे हैं. ठीक है? पावर मैंने भी इसकी ज्यादा है कम है, लेकिन ये दोनों ही क्या है? पार्लियामेंट है. ठीक है? अब हम पार्लियामेंट एज ए होल बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है? टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है? क्या करना है इसने? टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है. अब नेशनल गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट होती है? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, मेंबर्स दे आर इलेक्टेड. ठीक है? 543 मेंबर्स. अब इन 543 में से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होंगे, है ना. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. पूरे इंडिया को हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है. जैसे 543 हमने कहा कि मेंबर्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी होंगी? यस, अगर हमने 543 मेंबर्स को इलेक्ट करना है, देन हाउ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वी हैव टू मेक? यस, वेरी गुड अकुल. वी हैव टू प्रिपेयर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से ही ये इलेक्ट किए जाएंगे. ठीक है? हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई इन 543 मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में. ठीक है? और इसी 543 में से हमने कुछ रिजर्वेशन भी की है. रिजर्वेशन क्यों की है? यस, व्हाई वी हैव
done some reservation. In yesterday's topic, we have also discussed some of this thing. There are some reserved. This is just nomination, two nomination for Anglo-Indians, but there are some other reservation also. ठीक है, reservation किसकी है? जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें से 543 में से 79 जो सीट्स हैं, ठीक है, जो 79 सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, और इसमें 41 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं. ठीक है, टोटल हमने कहा कि 543 हैं, उस 543 में से ये रिजर्व हैं. हमने डिस्कस किया था कल कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बीइंग डन, कि हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी होती थी, एंड टू बैन देयर वाज आल्सो बैन वाज बीइंग डन बाय इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एन एक्ट पास बैन ऑन अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी के ऊपर बैन भी लगाया गया, ठीक है, बैन लगा के अनटचेबिलिटी को अबॉलिश भी किया गया. तो ये सीट्स रिजर्व की गई ताकि सबको गवर्नमेंट में इक्वल पार्टिसिपेशन हो. ये ना कि एक ही, अब इसमें से जो बाकी बचती हैं 423, जो 423 हैं वो जनरल हैं, ठीक है. तो ये ना हो कि एक ही कम्युनिटी के लोग जो है वो मेजोरिटी में आ जाएं और उन्हीं की गवर्नमेंट बन जाए. तो इसलिए इनको भी थोड़ी सीट्स दी गई कि इस कम्युनिटी के लोग इन सीट्स पर यही कम्युनिटी के लोग होंगे ताकि ये अपने एरियाज के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है, ये हो गए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि दीज आर शेड्यूल कास्ट. शेड्यूल मींस लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दीज आर द लिस्ट एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ कास्ट एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ ट्राइब्स व्हिच हैव गॉट द रिजर्वेशन. ठीक है, और जनरल में ऑल अदर पीपल. ठीक है, तो अभी इनको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. ये समझ लो कि ऑल द कम्युनिटीज विच आर इन माइनॉरिटी, जो लोग हमारे कंट्री में माइनॉरिटी में हैं वो इसमें आते हैं, या जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बिफोर, जिनको लोअर कास्ट का समझा जाता था. ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस जिनको लोअर कास्ट का समझा जाता था, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको इन कैटेगरीज में रखा गया है. या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिनका नंबर हमारे, जिस कम्युनिटी का नंबर, जैसे हमने कहा ना कि एक रिलीजियस मेजोरिटी दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट ना करे. ठीक है, तो इसलिए भी कुछ हमारे कंट्री में क्या की गई है, देयर हैज बीन मेड सम रिजर्वेशन. कुछ गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, वैसे तो नहीं करती इंटरफेयर रिलीजन में, लेकिन कई बार कुछ मैटर्स में करना पड़ता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजर्वेशन टू एंश्योर देम जस्टिस, कि उनके साथ जस्टिस हो, इनइक्वालिटी ना हो. ठीक है, अगर उनको मौका मिल रहा है वो आगे आएंगे तो दे विल डू सम बेटर वर्क फॉर देयर कम्युनिटी. ठीक है, तो ये चीज क्लियर करने के लिए कि एक ही कम्युनिटी की इसमें मेजोरिटी ना हो, कि सिर्फ जनरल वालों की मेजोरिटी ना हो जाए, तो इसलिए इनको भी दी गई है सीट्स. ओके, तो वी वर डिस्कसिंग द सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. तो सबसे पहले जो हमारी ये पार्लियामेंट है इसका काम क्या है, नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना. अब ये खुद तो सिलेक्ट हो गए एमपीज, है ना, अब एमपीज खुद को सिलेक्ट हो गए, इन्होंने आगे क्या करना है, आगे इन्होंने गवर्नमेंट बनानी है कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, हु विल बी द मिनिस्टर्स, कौन होंगे. तो जैसे अलग अलग पार्टीज हैं, आपकी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है. जैसे 13 लोकसभा इलेक्शन थे 1909 में, उसमें अलग अलग पार्टीज की आप देखोगे सीट्स दी गई हैं. ठीक है, इन सभी सीट्स दी गई हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली 543 में से. एक तो ये टेबल है, ठीक है, और एक टेबल है 1984 के इलेक्शन का. ये दोनों टेबल को आप स्टडी करना, देखना. पहले 514 सीट्स थी, उसके अकॉर्डिंगली डिवीजन है, और सेकंड बार जो है वो डिवीजन थी 543, उसके अकॉर्डिंग कि किस पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं, अलग अलग पार्टीज को कितनी कितनी सीट्स मिली. ठीक है, फिर हम इसी पॉइंट से कल कंटिन्यू करेंगे कि हाउ नेशनल गवर्नमेंट इज बीइंग सिलेक्टेड. क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहां तक सारा क्लियर है बेटा? ठीक है, ओके, गो थ्रू द चैप्टर. ठीक है, रिवाइज द पॉइंट्स, देन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो. Okay then, thank you students, take care.